Next is the division formula. Division or section formula. What is this? So this is the straight line joining AB, PJ point on the segment AB. Let us take coordinate of A, the x1, y1. This is the x2, comma y2. Let P divides AB in ratio m is to n internally. So if P point is the x comma y, आपको A given, B given, मतलब point A given, point B given, m given, n given. How to find out x and y? आप लोग का 10th में हुआ है ना सेक्शन फॉर्मूला? हाँ सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था सर ये। क्या था? What is your x? आपका x होगा mx2 plus nx1 upon m plus n. यस सर। mx2 plus nx1 upon m plus n and y हो जाएगा in terms of y my2 plus ny1 upon m plus n. if point P x comma y divides the line segment joining A x1 comma y1 and B x2 comma y2 in ratio m is to n internally, then आपका ये होगा x हो जाएगा mx2 plus nx1 upon m plus n and y हो जाएगा my2 plus ny1 upon m plus n और p कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिख सकते हो mx2 plus nx1 upon m plus n my2 plus ny1 upon m plus n. ठीक है? And instead of mn m1 m2 कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. तो instead of m is to n also you can take k is to 1 also. जैसे 2 is to 3 also you can write 2 by 3 is to 1. दोनों साइड में 3 डिवाइड कर दिया तो 2 is to 3 also you can write 2 by 3 is to 1. Also you can write 1 is to 3 by 2. तो रेशियो है ना, तो कुछ भी आप ले सकते हो. आप यहाँ पे mn जब रखते हैं ना तो दो अननोन के साथ रखते हैं, एक अननोन हो जाएगा. ठीक है? If you want to take k is to 1, आप k is to 1 के साथ भी जाओगे, आपका आंसर सेम रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं. k is to 1 के साथ जाओगे तो p पॉइंट क्या हो जाएगा? k x2. हमेशा ये कर्नर टू कर्नर है, 1 into another है. k x2 plus 1 into x1 upon k plus 1 and k y2 plus y1 upon k plus 1. ठीक है? ये होता है आपका इंटरनल
प्रूफ चाहिए? आप लोग किए थे, प्रूफ किए थे 10th में? सर हाँ सर। किए थे ना? हाँ सर। तो नहीं चाहिए? सर ठीक है चाहिए। सर। चाहिए। हाँ सर, प्रूव नहीं किए। म्यूट म्यूट करो। दीपक, बस ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस रखा। x डैश y डैश, ठीक है। तो पॉइंट ए से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। Let us take this is CDE. What is the CD लेंथ कितना होगा? ये मैंने पॉइंट रखा x1 y1, ये x, y है, x2, y2। What is the CD length? x minus x1, x minus Minus x1, x1. D length? x2 minus x, x2 minus x. What are BG length? y2 minus y, And PF length? y minus y1. तो clearly आपका AFP triangle and PGB triangle both are similar triangle. Yes sir. ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना होगा। और Yes, 90 sir. 90 एंगल में क्या होगा? These two triangles are similar triangle. AFP triangle similar to PGB triangle. Yes sir. Okay? तो आपका AF अपॉन साइड का रेशियो AF अपॉन PG is equal to PF upon BG. PG. .
is equal to AP upon PB. अच्छा, what is your AF? AF distance जितना CD distance उतना ही x होता है। minus x1 तो x minus x1 upon PG, x2 minus x2 minus x is equal to y minus y1 upon y2 y2 minus minus y y. FP upon PB, m upon n m upon n. ये दोनों को इक्वेट करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। nx minus nx1 is equal to mx2 mx2 minus minus m। yes sir ठीक है, x टर्म को एक साथ रखो, बाकी को ले लो। तो ये होगा nx plus mx, that is m plus n m into plus nx is equal to mx2 plus nx1। nx1 तो x क्या हो जाएगा? mx2 plus n plus 1 upon 2 plus nx1 upon m plus m plus 1 सिमिलरली y क्या हो जाएगा? ये जैसे x में था ऐसे ही y में था, yes sir आंसर सेम होगा, सिर्फ my2 x की plus जगह my2 plus my1 upon m plus n हो गया। yes sir राइट, तो मिड पॉइंट क्या होगा? x2 plus x1 upon 2. yes sir मिड पॉइंट ऑफ x2 plus x1 upon x1 प्लस, क्योंकि m is to n x 1:1 हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 upon upon 2 2 and y1 plus y1 y2 plus upon y2 upon 2 right। बस आप फॉर्मूला लिख लीजिए, डेरिवेशन होता है।
डन। ये जो था it was internal division. Okay, this division is called internal division. और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन. व्हाट इज एक्सटर्नल डिवीजन? ये वाला कौन सा था? इंटरनल डिवीजन. Okay. एक्सटर्नल डिवाइड क्या करेगा? सपोज दिस इज ए, दिस वन बी, पी आपका बाहर रहेगा. ओके, सेगमेंट के बाहर होगा. लास्ट टाइम क्या था? एबी के अंदर था, इनसाइड एबी सेगमेंट. ये आउटसाइड ऑफ द एबी सेगमेंट, बट लाइन के ऊपर रहेगा. ओके, तो if point P x comma y divides the line, यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं होगा, लाइन जॉइनिंग A and B in ratio m:n externally. m:n externally. आपका वही पॉइंट where A the joining A x1 comma y1 and B x2 comma y2 in ratio m:n external. Then आपका x जो होगा ये हो जाएगा, वही फॉर्मूला रहेगा, जस्ट रिप्लेस n आज माइनस mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, एंड आपका y हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n. इनफैक्ट आपका पॉइंट P होगा वही mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, कमा my2 माइनस ny1 अपॉन. तो ये एक्सटर्नली, यहाँ पे आपको क्या होगा? AP अपॉन PB इज द m:n. AP ये और ये दोनों का रेशियो m:n होगा. तो इफ यू कंपेयर विथ योर लास्ट फॉर्मूला, तो रिप्लेस n आज माइनस n के जगह माइनस n कर. On similar way, you can prove. This is your external division.
डन। 1 मिनट सर। यस सर। सर हेलो सर। सर वो डायग्राम है ABP, सर उसमें मतलब किस किस पॉइंट का आपने निकाला, मुझे वो नहीं समझ आ रहा है। हाँ और किस पॉइंट का कैसे निकाला वो नहीं समझा मुझे सर। लास्ट जैसे था ये x2 ये y2, ये आपका ये पॉइंट आपको ढूंढना है, ये गिवन ये निकालना है। आपका p बाहर रहेगा, एक्सटर्नली रहेगा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ओके सर। इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है। लास्ट केस इंटरनली इन AB के अंदर था पॉइंट p, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा था, ये एक्सटर्नली। सेम इसमें जो था वही है, A पॉइंट B पॉइंट P पॉइंट, P पॉइंट इधर अंदर था वो बाहर है, इतना ही डिफरेंस। ओके सर। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। टेंथ में आप लोग का था एरिया ऑफ ट्रायंगल। No, sir. नो सर। सर ऐसा वाला कोई फॉर्मूला नहीं था। नहीं कोऑर्डिनेट में। हाँ सर, कोऑर्डिनेट हाँ में सर, ऐसा कोई हाँ फॉर्मूला नहीं था। हाँ सर। नहीं नहीं था सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल which vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is half into x1 into y2 y3 plus x2 into y3 y1 plus x3 into y1 minus y2। ये साइक्लिक रहेगा, 1 2 3 का साइक्लिक होगा। ओके सपोज 1 2 3 ऐसे साइक्लिक में जा रहे हैं। जब x1 हुआ 2 3 2 माइनस 3, y में 2 माइनस 3। जब x2 हुआ 3 माइनस 1। जब x3 हुआ 1 माइनस 2, है ना। x1 इंटू y2 माइनस y3। और वही मतलब xy को इंटरचेंज कर दो, y1 इंटू x2 माइनस x3 प्लस y2 इंटू x3 माइनस x1 प्लस y3 मॉड इंटू, नहीं। हाँ मॉड रहेगा, ओके सर। x1 माइनस x2 इसका होल मॉड। ठीक है। सर और एक मिनट, डू यू नो डिटर्मिनेंट 3/3 डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3। और एक मैं फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। ठीक है। क्या बोल रहे थे, बोलो। इसका बी मॉडुलस है।
सर थर्ड वाला मैट्राइसिस है ना? डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस ऐसे होता है, मैट्रिसेस होता है अरेंजमेंट, ये डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पता है कि सर नहीं वो पता है? कैसे फाइंड करते हैं? नो सर। 2/2 डिटर्मिनेंट, आई थिंक यू मस्ट नो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी क्या होता है? into b into c into c into AD b minus minus cd AD minus BC, ये होता है 2/2 डिटर्मिनेंट। आपका 3/3 डिटर्मिनेंट, let us take A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ओके। इसका डिटर्मिनेंट होता है, यू कैन फाइंड आउट योर डिटर्मिनेंट रो वाइज और कॉलम वाइज। आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो, एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज, बट यू हैव टू फॉलो दिस साइन, प्लस अल्टरनेटिव साइन, प्लस माइनस प्लस, ये होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मैं फर्स्ट रो वाइज निकालूंगा तो you'll get A1 को क्रॉस कर दो, ठीक है, क्रॉस योर A1 को क्रॉस करेंगे तो क्या रहा? B2 C3। ये चारों का डिटर्मिनेंट 2/2, यस सर। तो क्या होगा? B2 B2 C3 C3 माइनस माइनस C2 B3। B3 C2, ठीक है। ओके सर। यस सर। देन सेकंड पार्ट होगा, सेकंड वन होगा माइनस। सर हाँ क्रॉस प्रोडक्ट जैसा है। हाँ हाँ 2/2 डिटर्मिनेंट जैसे AD माइनस। हेलो पहले सर इसको क्रॉस करो, ये एलिमेंट को क्रॉस करोगे, बाकी जो 4 एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, क्रॉस एलिमेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ रेस्ट 4 एलिमेंट्स। यस सर समझ गया। यस सर समझ गया ठीक है। सेकंड वन होगा, किसको क्रॉस करेंगे? B1 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 B2 B1 वाले रो को क्रॉस और करेंगे तो फर्स्ट B1 कॉलम को। एक्चुअली ये होगा माइनस ऑफ B1, मैंने साइन ये किया, यस सर। इसका पोजीशन नेगेटिव पोजीशन, तो माइनस B1 इंटू ये 4 एलिमेंट बचा, A2 C3 माइनस A3 C2। यस A2 C3 माइनस A3 A3 C2। ठीक है। देन प्लस यस सर। C1 को क्रॉस करेंगे, A2 B3 माइनस A3 B2। C1 को क्रॉस जब करेंगे तो आपका A2 B3 माइनस A3 B2। A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। और मैंने बताया रो वाइज भी कर सकते हो, सॉरी ये रो वाइज मैंने किया, फर्स्ट रो वाइज, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो, चेक करो। मैं कॉलम वाइज करूंगा तो क्या होगा? A1 मतलब जैसे इसको क्रॉस किया, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2, सेकंड किसको क्रॉस करेंगे? A2 को क्रॉस करेंगे, बट A2 का पोजीशन माइनस पोजीशन, B1 C3 माइनस B3 C1। माइनस A2 इंटू B1 C3 C3 माइनस माइनस B3 C1 प्लस A3 क्रॉस करेंगे, A3 B1 A3 को C2 क्रॉस माइनस करेंगे तो B2 B1 C3। C2 माइनस B2 C1, यस सर। B1 C2 माइनस B2 C1। C1। आप वेरीफाई कर सकते हो बोथ आर इक्वल और नॉट। मैंने एक रो वाइज निकाला, एक कॉलम वाइज निकाला, चेक करो, ये आज इट इज यस सर। A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2, ये भी सेम है। अच्छा इसमें रहा Yes, sir. A2 B1 C3 माइनस में A2 B1 C3, चेक करो
लास्ट वाले में आ रहा है सर वो। नहीं, इसमें यही है, A2 B3 B1 C3। यस सर। नेक्स्ट A3 B1 C2 प्लस में, A3 C2। B1 C2 प्लस में, A3 B1 C2 प्लस में। यस सर। देन A2 B3 C1 प्लस, A2 B3 C1 प्लस, A2 B3 C1 प्लस में, है ना। यस सर। देन ये आपका C A3 A3 B2 A3 C1 B2 C1 C1। माइनस में, A3 B2 C1 माइनस में, A3 B2 यस C1 सर। माइनस में, है ना। यस सर। तो not necessary first row wise or first column wise, any row wise, any column wise, but you have to follow this sign. Suppose आप second row wise निकाल रहे हो, first one आपका नेगेटिव होगा, second पॉजिटिव होगा, थर्ड नेगेटिव होगा, बराबर। सर आपने फॉर्मूला में थर्ड कॉलम से 1 1 1 लिखा है। तो आपका पॉइंट, आपका जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 साइड में 1 1 1। सर x3 नहीं होगा। x3 कहाँ आएगा आपका? ओके ओके हाँ सर अब तो आगे वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 x3 y3 तक तो मैंने लिख दिया, z z नहीं है ना। यस सर। टुडे चेक करो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, मैं कॉलम वाइज निकाल रहा हूँ। क्या होगा? x1 इंटू x2 y3 x1 into x2 y3 minus हाँ, x3 y2। x1 इंटू y2 माइनस y3 यस सर y2 minus y3। मिला। यस सर। सर देन माइनस सेकेंड वन होगा माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3 y1 minus y3। x2 इंटू y1 माइनस y3, यही मिला ना। यस यस तो सर। माइनस को अंदर ले लेंगे तो y3 प्लस होगा, y1 माइनस होगा। यस सर। यस सर। थर्ड वन x3 इंटू y1 y1 माइनस y2। y1 minus y2। यस समझा? सर। यस सर। आप ये कॉलम वाइज निकालोगे, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई प्रूव कर पाएगा? क्या सर? ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कोई प्रूव कर पाएगा? कोई इसका डेरिवेशन निकाल पाएगा? सर सर तो अब जो आपने सर्कल वाला बनाया सर मुझे वो समझा नहीं है। सर्कल जो बताया वो इजी टू रिमेम्बर, मतलब सर्कुलरली वो मूव कर रहा है, 1 के बाद 2 3 हो रहा है, 2 के बाद 3 1 हो रहा है, 3 के साथ 1 2 हो रहा है, सर्कुलरली मूव कर रहा है ना। ओके सर। सर वो प्रूफ वन कैसे टू करना है थ्री पता है? 2 3 1 3 1 2 ऐसे 1 हाँ 2 सर। 3 2 3 1 3 1 2। हाँ ओके सर। सर वो प्रूफ कैसे करना है पता है? हाँ, किसी को पता है तो बताओ। सर वो ट्राइंगल बनेगा और तीनों उसके साइड बनेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हाँ सर। बोलो। सर 3 साइड्स बनेगी। 3 साइड्स। नहीं मतलब ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। फिर सर फिर फॉर्मूला का ट्राइंगल
Let this is a coordinate axis. Let this is the triangle ABC. Whose coordinates are x1, y1, x2, y2, x3. ठीक है, तीनों वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टू द एक्स एक्सिस. ठीक है, तीनों से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो लेट अस टेक ये आपका सी डी नहीं डी एफ. व्हाट इज योर डी डिस्टेंस? A1 minus A2. X1 minus X2, sorry. x1, हाँ, x1 minus x2. What is your EF distance? X3 minus X1. x3 minus x1. What is the DF distance? X3 minus X2. Correct? Yes, sir. Can I write area of triangle ABC? मुझे area of triangle ABC चाहिए. Can I write this area as area of this? ये आपका कौन सा डायग्राम? Parallelogram. पैरेललोग्राम. कहाँ पैरेलल? Sorry, Trapezium. trapezium. ट्रेपेजियम. Area of trapezium. What? A B D E DE. plus area of trapezium AEFC minus area of trapezium BDFC बराबर. Yes, sir. Yes, sir. ये ट्रेपेजियम एरिया प्लस ए ट्रेपेजियम एरिया माइनस ए ट्रेपेजियम एरिया चलेगा ना? तो बात Yes, sir. रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा. ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? Half A plus D
sum of parallel sides into Into height. height. into height. Sum of parallel sides मतलब BD. What is the BD length? Y2. BD का length y2, ऐसी AE length Y1. y1, y3, है ना? तो sum of parallel sides मतलब y1 plus y2 sum of parallel Yes, sir. sides into height. Height मतलब x1 minus x1 minus x2 plus इसका sum of y1 parallel sides plus y3 y1 plus y3 into x3 minus x3 x1 minus x1 minus half ये y1 capital y2 y3 y2 y3 y2 plus y3 into x3 minus x2 x2 बराबर yes sir इसका मैग्नेट मॉडुलस क्योंकि एरिया आपका नेगेटिव अंदर पार्ट नेगेटिव हो सकता है बट एरिया नेवर नेगेटिव दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप मॉडुलस व्हिच इज mod of हाफ यू कैन टेक कॉमन इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा x1 y1 माइनस x2 x2 y1 y1 plus प्लस x1 x1 y2 y2 माइनस x2 x1 y2 y yes sir ये है this one x3 y1 minus x1 y1 plus x3 y3 minus x1 y3 बराबर yes sir minus x2 x3 y2 x3 y2 minus x3 y3 plus x2 माइनस ये y2 प्लस हाँ नहीं 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 बराबर ये माइनस देन ये प्लस होगा x2 x2 y2 y2 plus प्लस x2 y3 है ना yes sir which is अब देखो x1 y1 कैंसिल होगा ही होगा yes sir x2 y2 भी कैंसिल होगा yes sir x3 y3 ठीक है yes sir मतलब 1 1 2 2 3 3 वाला कैंसिल हो गया बचा x1 y2 और एक x2 x1 y1 नहीं x1 y3 देखो ये ठीक है ना तो if you take x1 common then you will get y2 minus y3 correct okay yes sir then take x2 term x2 Here- y1 और x2 y3 ये x2 y3 प्लस में और एक minus x2 x2 y1 second term हाँ, तो if you take plus x2 common then you will get y3 minus y1 yes sir then x3 term ये x3 है plus x3 take common then y1 y1 minus minus y3 y sir y3 आएगा ना no y2 x3 y1 x3 y2 yes sir sorry right 3 के साथ 3 नहीं आएगा ना 3 3 वाला कैंसिल हो चुका है okay 1 1 2 2 3 3 कैंसिल हो चुका है 1 के साथ 2 3 मिला 2 के साथ 3 1 मिला 3 के साथ 1 2 मिला हो गया प्रूफ yes sir प्रूफ हो गया और ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं इसलिए दिस टू आर इक्वल ये भी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं मतलब ये तीनों हम इक्वल पहले दिखा चुके हैं अभी कोई भी एक हो जाएगा तीनों सेटिस्फाई कर जाएगा डन मतलब समझ में आया yes sir Yes, sir.
Right on. Sorry.
सर जो x3 y3 कट हुआ है उसमें पॉजिटिव रहेगा ना? क्या बोल रहे हो? फिर आपने जो x3 y3 कट हुआ है ना, वो दो x3 y3 x1 y1। हाँ, x3 y3 एक इधर है, एक, अच्छा एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो एक दो, एक दो एक, हाँ इधर ये प्लस होगा। देखो x3 y3 प्लस में आ रहा है ना, सॉरी ये नहीं था, ये find out this two area.
सर सेकंड का 22.5। सर वो सेकंड का है 22.5।
फिर सेकंड का 22.5। डन। यस सर। इसमें बहुत सारे आंसर मिला, क्यों? -3, 7, 1, 4, 8। तो एरिया होगा हाफ। तो क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फॉर्मूला सर। मतलब लिनियर, मतलब ये डिटरमिनेंट की नॉन डिटरमिनेंट? आप क्या सर यूज नॉर्मल वाला x1 नॉर्मल? y2 minus y3। ओके, x1 y2 minus y3 वाला। मैं डिटरमिनेंट यूज कर रहा हूँ। तो 2 - 3 1 7 1 1 and 4 8। ठीक है, यस कोई सर। चीज आप इसका फिर मॉड, बाद में मॉडुलस लिया जाएगा। यस सर। तो हाफ, तो ये 2 into 1 minus 8, 2 into 1 minus 8, ये पोजीशन माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, पोजीशन माइनस। हाँ, तो माइनस Yes, ऑफ sir. -3 +3 होगा। 3 into 7 - 4। मैं ऐसे अभी ऐसे लिख रहा हूँ, बट बाद में मैं मतलब मेंटली आप जितना कर पाओगे। +1 into 4, 7 into 8 56 - 4, 4. है ना? Yes, sir. विच इज हाफ ऑफ, ये आपका -14, ये आपका 3 Yes, into sir. 3 9 52। तो ये -547/। 2. 23/5 आ रहा है सर, करेक्ट। 23.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये 0.2 होने का चांस नहीं, 0.2 0.3 एक इसमें होने का चांस नहीं, क्योंकि ये सब आपका क्या दिया गया, इंटीजर, कोई तो फ्रैक्शन नहीं है। तो आपका Yes, ये sir. जो डिटरमिनेट करो कि कैसे भी करो, वो इंटीजर होगा। बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, सपोज ये इवन होगा तो आपका इंटीजर आएगा, नहीं ऑड होगा तो 0.5 में आएगा। तो ये 0.2 0.3 का कोई चांस ही नहीं था। Yes, sir. सेकंड वन को क्या किया? सर 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया और फिर प्लस कर दिया दोनों का एरिया। अच्छा, 22.5 आ रहा है। अच्छा, मैं और एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि और एक फॉर्मूला है, अभी उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हाँ सर, आपने बोला था। तो एरिया
अब जो दो ट्रायंगल करके सम किए ना, वो लेंथी होता है। दो ट्रायंगल का एरिया निकालो, फिर दोनों को ऐड करो। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ इनसाइडेड पॉलीगन, कितने भी साइड होगा, इनसाइडेड पॉलीगन whose vertices are x1 y1 x2 y2 and so on up to xn yn। n vertex होगा ना, n vertices होगा इज, यस सर। बट ये जो पॉइंट्स रहेगा इन ऑर्डर होगा। ओके, इधर आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस होना चाहिए, नहीं तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडम एक इधर फिर इधर इधर, ऐसा नहीं, ऑर्डर में होना चाहिए। सपोज आपको ऐसे 4 पॉइंट दिया गया, आप क्वाड्रेटल कैसे बनाओगे? ऐसे करके बनाओ, नहीं तो ऐसे करके बनाओ। आप ऐसे करके तो बना नहीं पाओगे ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। आप ऑर्डर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, नहीं तो क्लॉकवाइज घुमाओ। ऐसा नहीं कि जंप करो, इधर से इधर आ जाओ, फिर इधर जाओ, इधर आ जाओ, इधर आके इधर ज्वाइन कर दो। तो आप जैसे ज्वाइन करोगे ना, उसी सब का एरिया मिलता जाएगा। ठीक है, इज हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 and so on xn yn। फिर जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे ना, वही पॉइंट पर एंड होना चाहिए। जो पॉइंट पे स्टार्ट मतलब करोगे वही पॉइंट डिटर्मिनेंट पर, ढूंढना है इसका। हाँ, इसका 2/2 डिटर्मिनेंट ऐसे ऐसे प्लस करते जाओगे। ठीक है, मतलब क्या होगा, यस सर। हाफ x1 y2 माइनस x1 x2 y1, x1 y2 यस सर। माइनस x2 y1 y1 प्लस x2 y3 माइनस 2 x3 y3 y2, माइनस x3 y2 x2 y3 माइनस x3 y2, y2 ऐसे करते जाओगे। हाँ, लास्ट को होगा xn xn yn y1 माइनस x1 yn। यस सर। ठीक है, जो पॉइंट पे स्टार्ट करोगे वही पॉइंट पर एंड करोगे। सपोज ये 1 ओके सर। 2 3 4 5, ठीक है ना। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5। तो आप ऐसे घुमाओगे 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 1, सो दैट वो क्लोज 1 होगा। ठीक है, इधर आप यस सर। क्लॉकवाइज घुमाओ, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। कोई भी पॉइंट से स्टार्ट करो, नॉट नेसेसरी आप इधर से स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5, जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे वही पॉइंट पर एंड होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, इसके ये रहेगा, आप एक्चुअल पॉइंट के हिसाब से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप एक्चुअल एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे तो आपका ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, नहीं क्लॉकवाइज घुमाओगे आपका ये वैल्यू नेगेटिव होगा। बट हम फाइनली मॉडुलस यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आपका मॉडल है, अब चेक करते हैं, पहला आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का क्या था, सर क्या क्या पॉइंट था? सर कौन सा सर, क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन वाला है उससे पहले वाला? क्वेश्चन वन 2 -3 2 -3 7 1 7 1 और 4 8 4 8, फिर रखेंगे 2 -3। यस सर। जो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वही पॉइंट पर एंड करेंगे। हाफ कितना, 2 माइनस माइनस प्लस 21 23 2 प्लस 21, ये आपका 56 माइनस 4 52 माइनस 12 -16 माइनस प्लस 16 4 प्लस 4
-12 -16 -28 Yes, yes, sir. -28. 23 -28 -5 52 -5 57 है. 47/2 23.5 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, समझा? Yes, sir. Yes, sir. इसका मॉडुलस था. Yes, बट ये sir. अब सेकंड के देखो पॉइंट्स क्या दिया है, चारों पॉइंट 2,5, 2,5 1,8, -3, 2, -4, -4, ये 2,5. 4 पॉइंट दिया गया, फिर 2,5 पर एंड करोगे. Yes, sir. ठीक है, which is half 16 11. -5 11 plus 2 plus 24 26 plus 12 12, plus 8 20 20, plus -20 -28. -20 plus 8. कैलकुलेशन ठीक करो. -20 plus 8 Yes, sir. -12. -12. ठीक है, Yes, sir. 26 20 46 40 ये भी नहीं 45 45. Yes, sir. 22.5. 22.5 स्क्वायर यूनिट्स. Yes, sir. ठीक है, बट वो पॉइंट कोऑर्डिनेट आपका कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से ऑर्डर में होना चाहिए. देखो मैंने ऑर्डर में पॉइंट दिया था 2,5. सपोज ये 2, ये आपका 5, ये 2,5, देन 1,8, देन मैंने दिया था -3,2, 2. देन दिया था 4, -4, -4. -4. चेक करो, इसको ज्वाइन करने से क्वाड्रेटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है. बन Yes, रहा है sir. सर. ठीक है, फिर उसका सपोज मैंने ऑर्डर कोई जंप भी हो करा सकता है ना. दिया. ऑर्डर. सपोज मैंने 1 2 ये 3 कर दिया, ये 4 कर दिया. आपको पूछा कि मैंने डिसऑर्डर में दिया, तो आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपको क्वाड्रेटर नहीं मिलेगा. Yes, sir. है ना, ऐसा नहीं मिलता है. तो आपको ऑर्डर में करके कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से ऑर्डर में करना पड़ेगा. तो सर तो वो देखो हमको ये प्लॉट करके चेक करना पड़ेगा ना. हाँ, प्लॉट करके चेक करोगे. ये देखो मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिया था पॉइंट, तो इसलिए आपका एंगल सॉरी आपका रिजल्ट क्या हुआ, पॉजिटिव में मिला विदाउट मॉडुलस. ठीक है, सपोज इसको आप एक क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे, पहले 1,8 देन 2,5 देन -4, -4 देन 3,2 देन फिर इधर आओगे तो आपका वही आंसर मिलेगी बट नेगेटिव में मिलेगा. Yes, आंसर sir. बराबर होगा बट नेगेटिव में मिलेगा. फिर उसका मॉड निकालना है ना. हाँ, मॉड निकाल रहे तो कोई आंसर तो ऑलवेज आपको पॉजिटिव में मिलेगा. समझा? समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. समझा सर. So this is the best method to find out any side. ऐसा नहीं कि आप क्वाड्रेटर के लिए 2 ट्रायंगल बनाओगे, पेंटागन के लिए 3 बनाओगे. सर वो फॉर्मूला लिखा है वहाँ पे स्क्रॉल करो ना.
सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना. डन सर. Find area of the pentagon whose vertices are 4, 1, -2, 6, -3, -5, 4, and 3, -2. सर वो -5 है ना पेंटागन का. हाँ, -5 ये पॉइंट ना, -5, यस 4. सर. हम्म यस सर. Sixteen square units.
सर 38 आ रहा है। कितना? 8? 38। सर 16 आ रहा है आंसर।
Okay. Anything else? बेटा ये तो Yes, sir. 16 आ रहा है. डिसऑर्डर में दिया गया तो आपको ऑर्डर करके निकालना पड़ेगा. Yes, sir. कहाँ 16. लिखा हुआ कि इन ऑर्डर दिया गया? Okay, if I check on coordinate axis these points, तो आपका 4,1, then -2,6, ये आपका 4,1, ये आपका -2,6, then -3,3, -5,4. then -5,4, सर ये बोला मतलब चैट में डाला था. then 3,-2, है ना? ऐसे पॉइंट आपको दिया गया. तो ये पांचों पॉइंट को यूज करके तो आप पेंटागन ड्रॉ कर सकते हो, बट ए ऑर्डर में जाओगे तो नहीं होगा. ए ऑर्डर में जाओगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा. ठीक है, ये पेंटागन नहीं होगा. तो आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा. अब डिसऑर्डर को ऑर्डर करना पड़ेगा. तो कंसीडर दिस वन एज 1 2 3 4 5. मतलब ये 1, ये 2, ये आपका 3 होगा, ये 4 होगा. इधर मैंने ऑर्डर चेंज किया तो इसी हिसाब से रखना पड़ेगा. तो सर ये हो आंसर जाएगा 50.5 आ रहा है. हाँ 33 आ रहा है फिर 33. 50.5. सर एरिया होगा 50. 50. यस सर 50.5. 1 हुआ 4,1 -2,6, then -5,4, then -3, then 3, -2, then 5 के बाद 1, 4,1. इसका मॉड आप ये मॉडुलस नहीं चाहिए. ये मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ही देगा. ओके, सर मैंने क्लॉकवाइज लिया है. अब क्लॉकवाइज रखोगे तो आप ऐसे रखोगे, ऐसे रखे ना, तो उसका हाँ आपका सर. आंसर नेगेटिव में आएगा. तो आपको मॉडुलस यूज करना पड़ेगा. मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये मेरा आंसर ग्रेटर देन 0 देगा ही देगा. ओके सर. 24 + 2 26, then -8 + 30 22, then 15 + 12 27, then 6 + 9 15. 15, 11. then 3 + 8 11. 11. ठीक है. यस सर 50.5 आ रहा है. 101 आएगा सर. 75 75 90 101 50.5 यस सर करेक्ट है. स्क्वायर यूनिट्स. तो आपको डिसऑर्डर में कभी दिया जाएगा तो आपको ऑर्डर करके करना पड़ेगा. ओके सर. बट इन जनरल आपको ऑर्डर में देते हैं. क्वेश्चन जब देते हैं वो ऑर्डर में देते हैं इन जनरल. बट एक ऐसे जे में एक बार हुआ था, मतलब डिसऑर्डर करके दिया. समझाइए. Yes, sir. यस सर. नेक्स्ट सेंटर्ड.
अच्छा, बिफोर दैट स्लोप करते हैं. एग्जाम्पल, स्लोप. स्लोप क्या होता है? ग्रेडियंट. ग्रेडियंट. ओके, स्लोप और ग्रेडियंट. ओके, सर वो y2 minus y1 वाला ना फॉर्मूला. हाँ सर, Right, y2 this is minus the y1 अपन ने. हाँ. x-axis, positive x-axis. This is the line. If your line makes an angle theta with respect to positive direction of x-axis, a side में नहीं, ठीक है? Then that tan theta is called slope. Tangent. Gradient. Yes sir. If a line makes an angle theta with respect to positive direction of x-axis, then tan theta is called slope of the line. And denoted by m. m जहां पे लिखा जाएगा वो स्लोप को डिनोट किया जाता है, ठीक है? Slope of a line joining points x1 y1 and x2 y2 is, suppose this is your y-axis, that this is your y-axis, ठीक है? तो इसके ऊपर एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट x1 कमा y1, एक पॉइंट x2 कमा, ठीक है? तो इसका स्लोप देखते हैं. ये लाइन का स्लोप मतलब एबी का भी स्लोप. एबी जितना एंगल करेगा ये लाइन भी उतना ही एंगल कर रहा है. तो स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग x1 y1 एंड x2 y2 कितना होगा? तो ए एंड बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टू द x एक्सिस. सर ए और बी के बीच में परपेंडिकुलर लाइन क्यों ड्रॉ की है? क्या हुआ? सर ए और बी के बीच में परपेंडिकुलर लाइन क्यों ड्रॉ की है? ए और बीच के क्या बोल रहे हो? ए एंड बी के बीच में परपेंडिकुलर लाइन क्यों है? वो y एक्सिस. अच्छा ओके. सर लेकिन फिर तो वो एक सेकंड क्वार्टर नहीं. क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट नहीं होता है क्या? होता है सर, लेकिन आपको ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए. ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. यस सर. व्हाट इज द एसी डिस्टेंस? एसी लेंथ कितना होगा? x2 minus x1. x2 minus x1. बेसिक डिस्टेंस y2 minus y1. y1. यस सर. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल.
Yes, sir. व्हाट इज द tan थीटा? m स्लोप ये ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा? y2 minus y1 upon AC x2 upon minus AC. x1 BC मतलब Yes, y2 sir. minus Y1 y1 1 upon upon x2 x2 minus minus x1. yes sir Yes, तो sir. वही हो गया स्लोप ना. तो स्लोप ऑफ लाइन Yes, sir. जॉइनिंग पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is y2 minus y1 upon x2 minus x1. सर किसी का माइक से गाना बज रहा है. ये कौन है बेटा? सर पता नहीं. और y1 minus y2 upon x1 minus x2. दोनों से मैंने माइनस ले लिया कॉमन, तो ये y1 minus y2 हो जाएगा, ये x1 minus x2 होगा. तो y2 minus y1 करो कि y1 minus y2 करो, बट जैसे y में करोगे ऐसे वैसे ही आपका x में होना चाहिए. Yes sir. सर इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है ना? मॉड क्यों लगेगा? tan थीटा नेगेटिव नहीं होता है क्या? जब ऐसे लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा? मैंने क्या बताया? थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो ये होगा आपका थीटा, ये नहीं होगा, ये आपका थीटा होगा. तो ये थीटा क्या दिखाई दे रहा है, एक्यूट की ऑब्ट्यूस? ऑब्ट्यूस. ऑब्ट्यूस. ऑब्ट्यूस होगा तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव. नेगेटिव. तो मॉडुलस का क्या जरूरत है? यस सर. ठीक है. अच्छा, if 3 points are collinear then सर आपने फॉर्मूला दिया y2 minus y1 upon x2 minus x1 और y1 minus y2 upon x1 minus x2. सर फॉर्मूला लेना कौन सा है, क्योंकि सर अगर सर क्योंकि दोनों से आंसर्स अलग आएंगे. टेस्ट करके देख लो. आप मतलब मैथ्स पढ़ रहे हो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है. आंसर क्यों अलग आएंगे? हाँ, 2 minus 3 upon 4 plus 8 and 3 minus 2 upon minus of 4 minus 8. नहीं तो 4 minus 8 करो. थ्री माइनस टू अपॉन 8 minus 4. देखो आंसर Yes, क्या sir. आ रहा है दोनों का. ये कितना दे रहा है? 1/4. ये कितना दिया? 1/4. -1 upon -4. हाँ सर. आंसर क्यों अलग आएगा? Yes, sir. मतलब जैसे 7th 8th बच्चे पूछते हैं ना, ऐसे ही आप लोग पूछ रहे हो. 7th 9th 5th 6th बच्चे नया नया करते हैं माइनस, मतलब ये
if points A, B, C are collinear, then क्या होगा? If 3 points are collinear, collinear मतलब lies on a straight line. Straight line. Sir, If 3 points are collinear, तब क्या होगा? A plus C by 2 is equals to B. क्या? ए बी बी सी और ए सी का स्लोप सेम होगा. Then slope of AB, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, m of AB is equal to m of M of BC. BC is equal to m of AC. कोई दो रखो, तीन मत रखो, तीन का कोई मतलब नहीं. Take any two. Yes, sir. Take any, Yes, sir. और मैं तीनों पॉइंट्स, कोई भी आपको तीन पॉइंट्स दिया जाएगा, आप क्या बना सकते हो? रैंडमली कोई 3 पॉइंट दिया जाएगा, क्या बना सकते हो? ट्रायंगल. ट्रायंगल. सपोज आप इसको सोच के चलोगे कि ये ट्रायंगल बन गया, तो क्या होना चाहिए? एरिया क्या हो? एरिया विल बी 0. यस सर, Yes, एरिया sir. 0 होगा. एरिया 0 हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों Yes, पॉइंट तो sir. ट्रायंगल तो नहीं बनेगा. और यस सर. Yes, if sir. points ABC are collinear, then area of triangle ABC is equal to 0 हो जाएगा. ठीक है, तो Yes, sir. ये दोनों से किसी को चूज करना है फॉर इजी. Which one M you have of to AB is consider? equals to M BC. Slope method is the more easy than area of triangle. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Yes, go for sir. slope rather than area. करो. Yes, sir. Then, sir. Done. Yes, sir. Next, angle between two straight lines whose slopes are given. Whose slopes are given. Let us take two lines are there. ये आपका x axis, ये आपका line 1, ये आपका line 2. ठीक है, और let us take angle between them with the theta. L1 का स्लोप दिया गया m1,
इसका स्लोप दिया गया m2. ओके, if theta be the angle between two straight lines whose slopes are m1 and m2, then आपका tan थीटा का फॉर्मूला होगा m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. अच्छा, लेटेस्ट आपका L1 एंगल कर रहा है अल्फा, L2 एंगल कर रहा है बीटा विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो m1 मतलब हम क्या लिख सकते हैं? m1 का मतलब क्या होगा? If L1 makes an angle alpha with respect to positive direction of x axis, तो इसका स्लोप को क्या लिखेंगे? tan alpha. हाँ, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan अल्फा. वही डेफिनेशन दिया ना. Yes. If a line makes an angle theta with respect to positive direction of x axis, then tan theta is called slope of the line and denoted by m. Yes, sir. So if slope of the line m1 given and line makes an angle alpha, if line makes an angle alpha with positive direction of x axis, then m1 को आप tan alpha लिख सकते हो. m2 को क्या लिखोगे? Yes, sir. m2 को क्या लिखोगे? tan beta. tan बीटा. tan beta. अल्फा बीटा एंड थीटा के बीच में क्या रिलेशन है? What is the Alpha relation plus between? beta plus theta is 180. Alpha क्या plus beta plus theta is 180. अल्फा प्लस थीटा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. Yes, sir. External angle is the sum of interior angles. Yes, sir. तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा. थीटा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा. ये tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा होगा tan ऑफ बीटा tan माइनस अल्फा, beta minus tan. Yes, sir. which is tan beta minus tan alpha upon 1 plus tan beta into tan alpha. ठीक है, Yes, sir. तो इसका मॉडुलस इसलिए रखा, ये मॉडुलस रखोगे तो आपका थीटा क्या हो जाएगा? इज एन एक्यूट होगा, क्योंकि दो लाइन के बीच में क्या होगा? एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है. ये थीटा होगा तो ये पाई माइनस थीटा होगा, ये एक्यूट होगा तो ये ऑब्ट्यूस होगा, ये ऑब्ट्यूस होगा तो ये एक्यूट होगा. तो आप ये एंगल बोलो कि ये एंगल बोलो, डिफरेंस नहीं है. सपोज ये एंगल 40 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री. तो एंगल बिटवीन टू लाइंस 40 बोलो कि 140 बोलो, बोथ करेक्ट. ठीक है, बट मैंने मॉडुलस यूज किया, मतलब ये रिजल्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा. tan थीटा पॉजिटिव होगा तो Yes, ऑब्वियस yes. नहीं होगा, इसलिए मैंने थीटा को एक्यूट वाला एंगल कंसीडर किया. अब tan बीटा की जगह डाल दो m2, which is m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, है ना इसका मॉड. तो Yes, आप sir. m2 minus m1 मॉड रखो कि m1 minus m2 मॉड रखो, दोनों तो सेम होता है मॉडुलस में. So this is the formula of tan theta, m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2.
ठीक है, इधर से आज तो टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट कंडीशन, इसका कंडीशन बचा है, ओके सर। नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट। एंड सीक्वेंस सीरीज का जितना क्वेश्चन बचा है कर लो, अदरवाइज यू Yes, विल नॉट sir. गेट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट Yes, क्लास sir. मुझे याद दिलाना कि कंडीशन हम नहीं किए। हाँ सर। Yes, sir. बाय सर, थैंक यू सर। चलो बाय बाय सर। बाय सर थैंक यू सर। थैंक यू।